ادا کرتے ہیں نا تو آپ ان کی ساؤنڈز کیسے ہوتی ہیں؟ کلاس چلتے رہتی ہماری. نہیں میری بالکل ایمٹی اسپیس ہوتی ہے. یہ بریتھ سے آپ کی ساؤنڈ نکل رہی ہوتی ہے. جہاں یہ اخراء کی بریتھ رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، انہوں یہاں بیٹھے. ہوا ختم ہو جاتی ہے تو یہ لیٹرز کی آواز بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں الہوائیہ، ہوا پر ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین ان کے لقب ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ الہوائیہ لیٹرز کون سے ہیں، یا المدینہ کون سے ہیں، یا الجوفیہ کون سے ہیں، تو فوراً آپ کہیں گے تین حروف المد: الف مد، واو مد، یا مد. لیکن کس طرح بنتے ہیں؟ الف سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ. اور ان کو کتنا اسٹریچ کرنا ہے؟ 2 ٹائمز. اور ان کا مخرج عام اور خاص ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اور واو اور یا جب حروف المد ہوں گے تو یہ الجوف سے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر ان پہ کوئی اور حرکت ہوگی تو پھر کچھ اور ہوگا مخرج. اچھا، نیکسٹ پیج دیکھیں. نیکسٹ پیج، یہ بھی ریویژن ہے، اب کر چکے ہیں. جب تک پچھلا کلیئر نہیں ہوگا آپ گھر میں ریوائز نہیں کریں گے، آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے، میرے سے پیچھے نہ رہیں. مخرج عام الحلق، ابھی ہم نے کون سا کیا پہلے؟ الجوف. نیکسٹ کون سا مخرج عام ہے؟ الحلق. الحلق سب کو ہی پتا ہے. ٹھیک ہے، مخرج عام الحلق، اس میں 3 مخارج خاصہ ہیں، 3 خاصہ ہیں اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. 6 لیٹرز ادا ہوتے ہیں ان سے. مخرج عام کون سا ہے؟ الحلق. اور اس میں کتنے خاصہ ہیں؟ مخرج عام میں ہم نے سیکھا کیا ہوتے ہیں؟ مخرج خاصہ، خاص مخرج ہوتے ہیں. اس میں کتنے ہیں؟ 3. اور مخرج خاصہ سے کیا نکلتے ہیں؟ تو کیا ہے مخرج خاصہ؟ اس میں لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 لیٹرز ہیں. اب کون سی مخرج خاصہ ہے اس کے اندر؟ مخرج حلق میں ہم دیکھتے ہیں اقصل حلق. اقصی حلق یہ دیکھیں کیا ہے؟ اقصل حلق یعنی دور، منہ سے دور آواز کی ڈبی وائس باکس کے قریب کا حصہ. وائس باکس سے قریب جو آپ کا ایپل ہے نا، جو پکا ویسا ہوتا ہے، آپ نیک پہ دیکھتے ہیں اس کے بالکل نیچے جو ہوتا ہے وہ پیچھے وائس باکس ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر اقصی حلق ہے. وہ جتنے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہ سب وائس باکس میں پروڈیوس ہوتا ہے اور مخارج سارے وائس باکس سے اوپر جاتے ہیں. نیچے کوئی آواز نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر کوئی وائس باکس جہاں ہے اس کے اوپر آواز نکلتی ہے. پھر نیکسٹ مخرج خاصہ ہے حلق میں وسط الحلق، مڈل آف دا تھروٹ. پھر ادنی الحلق، منہ کے قریب کا حصہ. ٹھیک ہے، ادنا کا مطلب ہے قریب، یعنی منہ کے حصے سے قریب اور اس سے دور، وائس باکس سے دور. اور یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ادنا الحلق سے غین اور خا. ابھی پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں: اقصی الحلق، وسط الحلق، ادنا الحلق. ٹھیک ہے، اب اقصی الحلق کی طرف ہاتھ رکھیں بالکل وائس باکس کے قریب. یہاں سے کون سے حروف ہیں؟ حمزہ ہا. اقصی الحلق سے حمزہ ہا، پھر سینٹر پہ ہاتھ رکھیں. وسط الحلق سے عین اور ہا، ادنی الحلق سے غین اور خا. پھر اوپر لے آئے غین اور خا. ہاتھ رکھیں گے تو بہت جلدی یہ لیٹرز یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر سے ایک دفعہ اقصی الحلق سے حمزہ ہا، وسط الحلق سے عین اور ہا، ادنی الحلق سے غین اور خا. once more: اقصی الحلق سے حمزہ ہا، وسط الحلق سے غین اور خا، ادنی الحلق سے عین اور ہا، ادنی الحلق سے غین اور خا. ٹھیک ہے، یہ لیٹرز بھی ہم نے پریکٹس کیے تھے کہ ان کے ساؤنڈز کس طرح ہوتے ہیں. جب بھی کوئی لیٹر کو پریکٹس کرنا ہے اس کا مخرج تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیٹر کو ساکن کریں گے اور اس کے ساتھ حمزہ لگائیں گے اور اس کو پریکٹس کریں گے کہ اس کا ساؤنڈ کیسا ہے. اور یہ لیٹرز آپ دیکھ لیں کہ 3 مخرج خاصہ ہیں، لیکن ان کو جب ادا کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ سلائٹ ہلکا ہلکا سا فرق ہوتا ہے ان میں، ایک نیچے اور ایک اوپر. ٹھیک ہے، ا ہا
करेंगे you'll feel कि वो जरा सा ऊपर और नीचे है, तो खासा वही है 3, ठीक है। ये इनको आपको याद रखना है कि कौन से मखरज या खासा है, इनके नाम और कौन से लेटर्स कौन कहाँ से अदा होते हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि अगर याद नहीं रखेंगे तो आपको अदा करना नहीं आएगा। थियरी नहीं पढ़ेंगे तो आपके रेसिटेशन थोड़ी ठीक होगी, नहीं ठीक होगी। आप अंदाजा करेंगे, अंदाजे से तो काम नहीं होगा ना। अब तो हम तजवीज सीखने आए हैं, अंदाजे तो हम करते रहे हैं, कॉपी तो हम करते रहे हैं, पैरट तो हम बने रहे हैं। अब हमने पैरट तो नहीं बनना ना, अल्लाह ताला ने माइंड दिया तो हमने उसको यूज करना है। तो जब तक थियरी आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको एप्लीकेशन नहीं आएगी। ओके चलिए प्रैक्टिस करते हैं पहले हमजा से, ठीक है। अब साथ हमजा लगाएं, अ, कैसे प्रैक्टिस होगी तो अब इसमें क्या फील कर रहे हैं? जब आप बोलते हैं तो आप फील कर रहे हैं कि इसकी आवाज जो है अब्रप्टली रुक रहा है, साउंड फ्लो नहीं हो रहा और ना ही एयर फील हो रही है, ठीक है। जो चीजें हम साथ महसूस करेंगे ना हर्फ को अदा करते हुए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो उसको उसी तरीके से ही अदा करना है। मसलन में नेक्स्ट लेटर देख लें, आवाज सुन रहे हैं, तो इसी तरह अदा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ये अदा कर रहे हैं तो इसमें मुझे साउंड फ्लो करता हुआ आवाज सुनाई जा रही है, एयर भी मुझे फील हो रही है, ब्रेथ भी फील हो रही है। मैंने ऐसे ये ऐसे ही अदा होगा with the sound and with the air, with the breath का sound, ठीक है। इसको प्रैक्टिस इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट लेटर्स देखें, मिडिल ऑफ द थ्रोट से, वसतुल हलक से आइन और हा। अब आइन को प्रैक्टिस करना हो, हमजा लगाएंगे, मुंह खोलेंगे, जब तक आपके मुंह बंद होंगे आपके मखारिज क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। आ आ ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि साउंड आपको थोड़ा फ्लो होता महसूस हो रहा है और ब्रेथ नहीं फील हो रही व्हेन यू से नेक्स्ट लेटर देखिए, हा। आई होप आपने घर में इसी तरह प्रैक्टिस किया होगा। हा हा ओके। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि इसका मखरज देखना हो तो हमजा लगाएंगे और इसको कैसे बोलेंगे, आह, नॉट आह बट आह, फ्रॉम द मिडिल, आह, जहां से आई ना वहां से आह आह, इस तरह प्रैक्टिस करना है। अब इसमें क्या फील हो रहा है, ब्रेथ भी फील होगा मैंने आप रिपीट कर रहे हैं ना, और साउंड भी फील हो रहा है, सुनाई दे रहा है कि साउंड भी फ्लो हो रहा है, ब्रेथ भी फ्लो हो रही है। ओके, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो करेंगे हम बाद में। नेक्स्ट लेटर प्रैक्टिस करेंगे गाइन, इसका मखरज, हमजा लगाएंगे और कैसे पढ़ेंगे इसको, नॉट गौर से सुने, क्या फील हो रहा है इसमें, साउंड फील होगा, ब्रेथ फील नहीं होगी। ठीक। नेक्स्ट लेटर देखें, खो, खो नॉट खा, खो, 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 ठीक, खो। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, अब हमजा मोटा नहीं है, खो मोटा है ना, नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हमजा को मोटा नहीं करेंगे। क्या फील हो रहा है, इसको इसी तरह अदा करना है तो आपका मखरज सही होगा। क्या फील हो रहा है इसमें, साउंड भी, और व्हेन आप हाथ रखेंगे तो आपको ब्रेथ भी महसूस होगी। अब ये लेटर्स 6 लेटर्स को अपने घर में अच्छी तरह इसी तरह जैसे मैंने प्रैक्टिस करवाया है इसी तरह इसको प्रैक्टिस करना है, और जितने लेटर्स मैंने करवा लिए इनके मुताबिक आपको याद होने चाहिए तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे जो लेटर्स और हम करेंगे उसमें टंग यूज होगी बेसिकली, सारे मखारिज मैंने टंग से एक्सप्लेन किए। अगर आपको अच्छी तरह लिसान जबान के हिस्से आ गए तो इंशाल्लाह सारे मखारिज इजी हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देख ले मखरज आम, नेक्स्ट वाला कौन सा, हमने कौन सा किया पहले, अल-जौफ, सेकंड हमने कौन सा किया, अल-हलक, अब तीसरा हम कौन सा करें, अल-लिसान, लिसान के जबान,
अच्छा, इसमें देखते हैं क्या आम मखरज आम तो अल-लिसान है। अब इसमें खास कौन से हैं वो देखते हैं। इस लिसान में 10 मखारिज खासा है, 10 है इसके अंदर, ठीक है। मखरज खासा, खास जगह। मखरज आम में मखरज खास है, कितने? 10। और इसमें कितने लेटर्स हैं? 18 हुरूफ अदा होते हैं। अब इनको मिक्स नहीं करेगा कि 10 मखारिज के बजाय 18 मखारिज के। 10 मखारिज हैं और 18 लेटर्स हैं। लिसान के मखारिज में दांतों और जबान दोनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए पहले इनके नाम जानना जरूरी है। नाम जबान के हिस्से नहीं पता होंगे तो हमें पता नहीं होगा कौन सा हिस्सा कहाँ लगाना है। आपने डायग्राम्स आई होप बनाए हों, मैंने कहा था कि आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और बुक में बना हुआ डायग्राम आप जब तक लिख लिख के अपने पास एक रजिस्टर रखें, स्टेशनरी रखें, जब तक आप खुद अपना एफर्ट नहीं करेंगे, आप खुद नहीं लिखेंगे तो आपको याद नहीं होगा। ये लर्न करने का तरीका होता है कि आप उसको देखें, पढ़ें, बुक बंद करें और उसको लिखें। चाहे 10 दफा लिखना पड़े, आप लिखेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको पढ़ाने में भी आसानी होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी। जो टिप्स आपको दिए जाते हैं ना, वो आप प्लीज उसको फॉलो किया करें और अपना माइंड छोड़ दिया करें, ठीक है। जो समझाया जा रहा हो उसको फॉलो करें, ओके। डोंट से कि नहीं जी, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, कि नहीं आई नो इट, वो लिखा हुआ है, मुझे पता है क्या करना है, ठीक है। वो ऐसे नहीं होगा, आप फिर भूल जाएंगे कल, सबसे पहले आप ही भूलेंगी, ठीक है। तो आप सबको जो होमवर्क दिया जाए, एवरीबडी हैज टू डू इट, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है, आपको करना है। वो रजिस्टर आपका चेक होगा, आपकी टीचर आपको जब मिलेगी तो आप आपके सारे रजिस्टर्स चेक करेंगे कि आपने क्या काम किया, आपने जितना आपको क्लास में पढ़ाया गया, आपने चेक नोट लगाए, आप क्या मार्किंग्स कर रहे हैं अपने कुरान में, वो देखा जाएगा, ठीक है। आपके कुरान पाक चेक होंगे, ओके। अब इसमें देखें, हमने सबसे पहले उर्दू में इसको हमने मार्क किया था। फर्स्ट डायग्राम आपका उर्दू में होगा। अल-लिसान मखरज आम, इसके अंदर आप देखें, अब जबान के पार्ट्स हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या मार्क कर रहे हैं? जबान के पार्ट्स। सबसे पहले हमने देखा था जबान की जड़, ये आपको शायद डायग्राम ग्रुप में भेजा भी था। जबान की जड़ जो क्या है? रूट ऑफ द टंग, पीछे सबसे पीछे वाला हिस्सा। हिस्से हम जबान के याद कर रहे हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं साइड में मोटे किनारे, ठीक है, मोटे किनारे। अब आप देखें जबान अपनी खुद आप फील करेंगे कि पीछे क्या है, जड़ के बाद क्या आते हैं? मोटे किनारे, ठीक है, मोटे किनारे। फिर बीच में क्या है? जबान का दरमियानी हिस्सा, मिडल ऑफ द टंग। फिर थिक एजेस के बाद क्या है? थिन एजेस, थिन एजेस। और एक पॉइंट जो बीच में है, वो एक पॉइंट स्टार मार्क कर लें, उसको बताते हैं वो क्या, वो एक पॉइंट मार्क कर लें, ठीक है। जहां से मोटे किनारे खत्म होते हैं और पतले किनारे शुरू होते हैं, उसको एक पॉइंट मार्क कर लें। भी आपको पार्ट्स आ गए तो आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह बाकी चीजें भी सीख लेंगे, इसके लेटर्स भी। अब आगे देखिए, पतले किनारे के बाद टिप ऑफ द टंग या जबान की नोक, और ऊपर जो है जबान की सतह। ये कौन सा हिस्सा है? टिप जो है, बिल्कुल जो नोक है उसके ऊपर का हिस्सा, बिल्कुल आगे जबान के सतह, ठीक है। इसको ये भी एक पार्ट मार्क कर लें, ठीक है। अब आप देख लें जबान की जड़, मोटे किनारे, दरमियानी हिस्सा, पतले किनारे, जबान की नोक और जबान की सतह, ठीक। ये उर्दू में लिख लें ताकि पता हो एग्जैक्टली कौन सी जगह क्या है। नेक्स्ट इसको हम इसके जो अरबिक टर्म्स हैं वो लिखते हैं। वो आपका एक डायग्राम होगा, फिर आपका ये एक डायग्राम होगा। 2 डायग्राम्स आपने ड्रॉ करने हैं। और ड्रॉ कैसे करते हैं कि आप पहले इसको देख लें, याद कर लें, बंद करें और ड्रॉ करें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखते हैं कि जबान की जड़ जो है, रूट ऑफ द टंग, इसको क्या बोलेंगे? अक्सर लिसान। जैसे अक्सर हलक था ना, अक्सर लिसान, दूर का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वसतुल लिसान, बीच का हिस्सा। अक्सर लिसान, फिर वसतुल लिसान, ठीक है, बीच का हिस्सा, दरमियानी हिस्सा। फिर जो मोटे किनारे थे, थिक एजेस, उसको हम क्या कहेंगे? हाफतुल लिसान, थिक एजेस, मोटे किनारे, हाफतुल लिसान, हाफतुल लिसान, ठीक है। फिर पतले किनारे,
थिन एजेस, इनको हम कहेंगे तरफुल लिसान, पतले किनारे तरफुल लिसान। आप अपना डायग्राम बनाएंगे, अपने हिसाब से मार्क करेंगे, आपको याद रहेंगे। पतले किनारों को क्या कहेंगे? तरफुल लिसान। यहाँ ज़लक़तुल लिसान, एक नाम याद कर लेंगे तो काफी है, दोनों उसी के नाम है, तरफुल लिसान। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट था जहां मोटे किनारे खत्म हो रहे हैं और पतले किनारे शुरू हो रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट जो आता है ना, जहां से आप फील भी करेंगे अपने टंग में, उसको कहते हैं अदनल हाफा। बस उसको मार्क करना है, एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से कोई लेटर अदा होगा तो वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता होगी जहाँ मोटे किनारे खत्म हो रहे हैं और पतले शुरू हो रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्या है? अदनल हाफा। ओके, फिर आगे आ जाए। अब पतले किनारों को क्या कहेंगे? तरफुल लिसान। फिर आगे पतले किनारे आ गए तो तरफुल लिसान। मोटे किनारे क्या हो गए? हाफतुल लिसान। फिर वो पॉइंट एक जहां वो खत्म हो रहे मोटे किनारे, वो क्या है? अदनल हाफा। फिर आगे तरफुल लिसान। पतले किनारों को क्या कहते हैं? तरफुल लिसान। ओके, फिर जबान की सतह जो है उसको क्या कहेंगे? ज़हर तरफुल लिसान। ज़हर तरफुल लिसान यानी जबान की सतह, जबान का ऊपर का हिस्सा। और जबान की नोक को रअसुल लिसान या असलियतुल लिसान। रअसुल लिसान, एक नाम याद करने, रअसुल लिसान। ठीक, ये अरबिक में आपने लिखने हैं और इसके पार्ट्स आपने याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आगे जाऊंगी, प्लीज इसको अच्छी तरह से कर लें ताकि इसके लेटर्स करें तो आपको पता हो कि कौन सी जगह कहाँ लगाना है। अरबिक उर्दू दोनों समझ के इसको लिखना है, ड्रॉ करना है और याद करना है। ठीक है, अब कोई भी जिसने नया ज्वाइन किया है और मैंने पिछला सारा रिवाइज कर दिया है, देखिए अरबिक में आप इंग्लिश की किताब भी हमारी देख लें तो जो ये नाम है ना, ये आपको अरबिक टर्म्स थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। नेम्स इन इंग्लिश आप कैसे, यू कैन राइट इट इन इंग्लिश, यस, वसतुल लिसान यू कैन राइट इन इंग्लिश, बट यू हैव टू लर्न द टर्म वसत। You can't write middle of the tongue. You have to write wasatul lisan. You can write it in English. ठीक है, but you have to learn the names. ठीक है, क्लियर है सबके लिए ये चीजें? Everything is clear, nothing is difficult. बात क्लियर हो गई? ठीक है, उसको इंशाल्लाह अब आपने पढ़ना है तो आपको और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इधर ही तक रुकते हैं, आज आगे नहीं जा रहे क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हो गया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी सी मैंने आपसे बात करनी है, अब थोड़ा आप लोग अटेंटिव हो जाए। ओके, अभी एक सेकेंड, हमारे पास अटेंडेंस कितनी है इस वक्त? साजा 860। ओके, 860। बाकी लोग जो हैं वो एब्सेंट हैं, क्योंकि हमारी उस पर तो है ना ज्यादा। ओके, अब ये मुझे एक चीज बताएं, देखिए आपने ये कोर्स, प्लीज ये सब के लिए मैं बात कर रही हूँ, आपने ये कोर्स ज्वाइन किया ना, आपने सारा कुछ मालूम किया था जब आपने ये ज्वाइन किया था। ठीक है ना, जब आपने कोई भी चीज सीखनी होती है ना, तो पहले तो आपको उस्ताद मालूम करना पड़ता है कि ये उस्ताद ऑथेंटिक जगह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो क्या ऑथेंटिक जगह है। मैंने सारे अपने देखिए टीचर्स की जो राइटिंग है ना, वो भी पीछे लिखी हुई है, जो उन्होंने नोट्स दिए हैं उसको ट्रांसलेट किया हुआ है, वो अरबिक उनके हाथ के लिखे हुए भी पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट द टीचर इज ऑलरेडी, she knows what she is teaching and she is learned from a proper teacher. ठीक है, प्रॉपर टीचर जिनके पास इजाजा है। ठीक है, वो फिर आगे आपको सही चीज देंगे। ठीक है ना, तो जब आपने ये सारा यू मेड श्योर कि जी हाँ ये टीचर ठीक है, मैं यहाँ सीखूंगी, और आपको मालूम होगा कि टाइमिंग्स क्या है इसके, आपने देखा होगा कि इसमें क्या करना होगा, हमें किस तरह ये ज्वाइन किया जाएगा, और उसके बाद आपने ये ज्वाइन किया। ठीक है, अब मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना, इन्होंने, एक तो ये फ्री कोर्स है ना, फ्री है ना, चलो वेरी गुड, ज्वाइन कर लेते हैं, देखा जाएगा हमारा क्या जाता है, देखेंगे नहीं मजा आया तो छोड़ देंगे। बहुत सारी चीजें आजकल हो रही है ऐसी जो आज लिसनर बन सकते हैं। हमारी क्लास में देयर आर नो लिसनर्स, नॉट वन लिसनर। ठीक है, हम सारे लिसनर्स को बहुत जल्दी रिमूव कर देंगे, कोई भी लिसनर नहीं होगा।
एक तो पहली बात आपकी पता है, आप जब क्लास ज्वाइन करते हैं आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। अगर आपका नाम नहीं है तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती। अब हम इतने लोगों में आपको बार बार मैसेज तो नहीं करेंगे कि प्लीज अपना नाम पूरा लिखें। आप जिस तरह जिस नाम से जूम में ज्वाइन होते हैं ना, बस आप ज्वाइन हो जाए, आपका टाइम हमारे पास आता है, जब आप लीव करते हैं उसका टाइम आता है, जब आप ज्वाइन करते हैं उसका टाइम आता है। ठीक है, बीच में लीव करते हैं आता है, फिर ज्वाइन करते हैं फिर भी आता है। तो जितनी दफा आप ज्वाइन करते हैं और लीव करते हैं और जब एब्सेंट होते हैं, सारा हमारा ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, जूम अटेंडेंस में हर चीज मार्क हो रही है। अब अगर आपने अपना पूरा नाम नहीं लिखा, आईफोन लिख दिया और सिर्फ लिख दिया सदफ, अब 2 सदफ है तो हम किस सदफ को लिखेंगे? दोनों सदफ को। जिसका सरनेम लिखा होगा उसको तो मार्क कर देंगे, ठीक है, उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। जिसका नहीं होगा, उसका सरनेम नहीं होगा, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। अगर अभी तक आपने पूरा नाम नहीं लिखा, आपकी अभी तक अटेंडेंस नहीं लगी। जिनका पूरा नाम है वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। तो यू शुड गेट वरिड कि ये तो पहला स्टेप है ना। आपने क्लास ज्वाइन की तो आपको सिखाया गया कि आपने जूम पे, अगर आपका कोई और इस्तेमाल कर रहा है जूम या लैपटॉप या फोन, तो उसके ऊपर हम अपने नाम कैसे चेंज करना है। आपसे शेयर की गई थी ये वीडियो या नहीं की गई थी? अच्छा, ग्रुप में जो चीजें भेजी जाती है वो किस लिए भेजी जाती है? तो इग्नोर नहीं, ढूंढा जाता है ना कि आज कोई मैसेज तो नहीं आया, इसीलिए उसमें अभी लिखना बंद कर दिया ताकि कोई मैसेज हम भेजे तो आप सुने और देखें। अगर आप मैसेजेस ही ना देखें तो यू वोंट नो कि क्या हो रहा है क्लास में। यू हैव टू फॉलो दैट। तो ये तो पहली चीज आपको सिखाई थी कि आपने नाम बदलना है। अब देखें स्क्रीन के ऊपर कितने लोग हैं जिनका अटेंडेंस नहीं लगी। आई एम सॉरी बेचारे, कितने दिन हो गए हैं इनके। बुशरा, आईफोन आईफोन आईफोन, सैमसंग। अब इनको क्या करें हम छोड़ दें, नहीं लगाए अटेंडेंस, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है ना, इनको छोड़ दें। एक मिनट बस। लूंगी कि 10 बजे क्लास ज्वाइन होती है। 10 o'clock इज 10 o'clock एग्जैक्ट। ठीक है ना, ये कोई दावत तो नहीं है शादी की कि आपको 7 बजे बुला रहे हैं और आप 12 बजे आ रहे हैं। शादी का फंक्शन तो नहीं है ना, यहाँ तो हमें आदत ही हो गई है इस चीज की। हमारे पास कोई पंक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो पंक्चुअल नहीं होता ना किसी काम में भी, मैं तो समझती हूँ वो कोई काम कर ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज होती है कि आप अपनी टाइमिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ना। ये काम मैंने इतने बजे करना है। मेरे से तो कोई काम घड़ी के बगैर होता ही नहीं। मैंने हाथ में पहनी होती है और एक सामने रखी होती है और एक दीवार पे लगी होती है, तो एक एक सेकंड घड़ी के ऊपर देखना पड़ता है कि क्या टाइम है। 1 मिनट आगे पीछे हो तो आपके तो काम सारे खराब हो जाते हैं। तो आप जब सुबह ही शुरू ऐसे करते हैं बेबरकती कि उठे हैं जिस वक्त, लेट उठे हैं, if your class is at 10 you should be ready by 5 to 10 or 10 to 10 और आप ज्वाइन करके बैठ जाएं। दिस इज द वे, प्रॉपर वे। ये तो नहीं कि आप अपना नाश्ते खत्म करके कोई 10 बजे, कोई 10:30 बजे, कोई 11:45 जब दिल करता आ जाते हैं। तो ये मार्क होता है ना आपका। बहुत सून हम शेयर कर देंगे आपके टाइमिंग्स, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मैं इतने बजे नहीं आई थी, इतने बजे आई थी और ये होगा, ये हो गया और ये हो गया। 10 o'clock का मतलब क्या होगा? 10 बजे। 10 बजे मुझे फुल अटेंडेंस चाहिए जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर हो जाए। सेकंड पॉइंट लिख लें। क्लास शुरू होती है 10 बजे। मैं जब आऊं मैं 10 बजे एग्जैक्ट शुरू करती हूँ। आई डोंट वांट टू वेट 1 मिनट ऑल्सो एंड वेस्ट 1 मिनट ऑल्सो। और कुछ लोग आगे होते हैं, उनका टाइम हरज हो रहा होता है। तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जरूर देखूंगी, और जो कैजुअली आ रहे हैं, अच्छा चलो लेट्स वॉक इन क्लास, दिस इज नॉट अ वॉक इन क्लास। ठीक है, ये सिर्फ लिसनर्स की क्लास नहीं है। जिन्होंने ये गलत सोच के आए थे वो प्लीज लीव कर दे, बता दे कि मैं छोड़ रही हूँ और चले जाएं, खुदा हाफिज। ठीक है, और जिन्होंने सोचा था कि रेगुलर क्लास है तो वो प्लीज इसको प्रॉपर्ली हर चीज को फॉलो करेंगे। क्लास के इंस्ट्रक्शंस सबके लिए हैं, आधों के लिए नहीं है। बात क्लियर होनी चाहिए मेरी सबको। ठीक है, 10 o'clock एग्जैक्ट 10 o'clock। मैं अगर अपने काम छोड़ के 10 o'clock क्लास में बैठूं और मुझे पूरे आगे स्टूडेंट्स ना मिले, फिर आप ये बताएं कि मैं आपको 10 बजे बुलाती हूँ और मैं नहीं आऊंगी,
ठीक है, मैं अपना नाश्ता करूंगी 10 बजे और उसके बाद मैं आऊंगी क्लास में। आपको अच्छा लगेगा कि मैं बैठे रहे, हम अनाउंस करेंगे, ठीक है, भैया बोल देंगे आप इंतजार करें, अभी आ रही हैं, अभी आ रही हैं, अभी आ रही हैं, अभी आ रही हैं। Nobody likes to wait. So please be punctual. Please be punctual. Okay. क्लास ओवर होने का टाइम क्या है? 1 o'clock. क्या आपको बताया नहीं गया था कि 1 o'clock क्लास ओवर होगी? क्या आप शॉक हो गए आके कि एकदम ओहो ये तो 1 बजे क्लास तक बैठना है, मैं तो नहीं बैठ सकती इतनी देर, तो फिर आपने ज्वाइन क्यों किया? ठीक है, मैं आज बहुत पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, जिसको सूट नहीं होता प्लीज अभी कर ले जो कुछ करना है। क्लास 10 बजे शुरू होगी, 1 बजे खत्म होगी, एग्जैक्टली 1 o'clock। ठीक है, ये टाइमिंग्स लिखे, 3rd पॉइंट लिखे कि मेरे ये टाइमिंग्स है। अब मुझे बताइए कितनी ज्यादा, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बदतमीजी, डिसरिस्पेक्टफुल यू कैन से, कि एक उस्ताद पढ़ा रही हो, एक उस्ताजा पढ़ा रही हो और आप क्लास छोड़ दें, यू वॉक आउट ऑफ द क्लास। हॉल में सोचे बैठे हुए हैं, अब क्लास हो रही है, दिस इज लाइक अ हॉल, आप बैठे हुए हो, इकट्ठे आए हुए ना, आप आए हुए ना मेरे हॉल में। अब जब आप मेरे हॉल में आ गए हैं and मैं आपको नजर आ रही हूँ, मैं आपको सारे स्टूडेंट्स को देख रही हूँ, सारी लिस्ट देख रही हूँ, और मेरे पास ऊपर आता है लीविंग, ज्वाइनिंग, लीविंग, ज्वाइनिंग, सब मेरे पास ऊपर लिखा हुआ आता है। अब मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं देखूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, वो जा रहे हैं, चलो हो गया ना, हमने देख लिया, अब सुन लिया, अभी क्या हो रहा है, अभी दूसरों का सुन रहे हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जब दूसरों का सुन रहे हैं आपकी करेक्शन होती है। आपने क्लास नहीं ज्वाइन करनी थी ना, आपको फोर्स तो नहीं किया गया, क्या किसी को धक्का मार के तो नहीं ज्वाइन करवाई गई क्लास, सबने अपनी मर्जी से ज्वाइन की है ना। ठीक है, तो जब जब मर्जी से ज्वाइन किया तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द क्लास। ठीक है, ये वॉक इन क्लास नहीं है, ये रेगुलर इंटरएक्टिव क्लास है जिसमें मुझे फुल अटेंडेंस चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए और रेगुलरिटी चाहिए। ठीक है, इसमें सारा डिसिप्लिन होगा और आपको ये ज्वाइन किया है तो आपको ये पूरा करनी पड़ेगी चीजें। 1 बजे का मतलब है नो स्टूडेंट शुड लीव बिफोर 1 अनलेस उसने परमिशन ली हो पहले से कि मुझे मजबूरी है या मुझे बच्चे को पिक करना है या कुछ, वो पहले से लीव ली हो। ठीक है, वरना 1 बजे से पहले मैं किसी को लीव नहीं देती। इमरजेंसी कोई होती है तो आप जूम पे लिखेंगे कि आई हैव टू लीव, सडनली मुझे अल्लाह ना करे कोई फोन आ गया, बट यू हैव टू गिव अ मैसेज एंड लीव। Please don't do this being so disrespectful. If without any message you just leave, walk out of the class. Supposing you are, I am teaching, suddenly हम बंद कर दें क्लास, चलो खत्म, हमारे नहीं दिल के आगे से सुनने का, पढ़ाने का, ये तो सुन ही नहीं रहे, ये तो अटेंटिव ही नहीं है। दिल करता है ना बाज दफा तो ऐसे ही हमारे पढ़ाने वालों का भी, जब हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो दिल करता है छोड़ो बंद करो, छोड़ दो आज क्लास नहीं करते। You wouldn't like that. And I also don't like it. It's very disrespectful. If I'm teaching and my student goes away, why? बोर हो गया, थक गया, समझ नहीं आई, he knows more. There are so many things जो दिमाग में आती हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपको लीव लेनी है। ठीक है, बात क्लियर है, प्लीज इसको बोल्ड लेटर्स में लिखें। कोई स्टूडेंट 1 बजे से पहले, आधे से ज्यादा आप लोग चले जाते हो, कहाँ जाते हो, क्या कर रहे हो, क्या है ये क्लास, ये मजाक है? आपने ज्वाइन किया, चलो निकल गया, आगे 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 कोई चला गया, कोई आ गया, ये व्हाट इज दिस? What is this? सी थोड़े लोग होंगे जो रेगुलर होंगे और वही रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, ये आ जा रहे हैं ना, ये सबको निकाल दिया जाएगा। ये शुरू में भीड़ जो होती है ना, ये भीड़ छट जाएगी। रेगुलर स्टूडेंट्स जो सीरियस है, जिनको शौक है, जिनको कुरान अपना अच्छा करना है, इतनी जिंदगी तो खराब हो गई कि उसमें पढ़ा भी नहीं और बहुत अच्छा समझ रहे थे हम पढ़ रहे हैं, अब इधर आते हैं तो पता चलता है वो इतनी मिस्टेक से हम पढ़ रहे थे, बिजाय सवाब के हमें तो गुनाह हो रहा है, हम क्या कर रहे थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है कि हम अपनी करेक्शन कर लें। ठीक है ना, हम ठीक कर लें, और क्या ठीक कर लें, अल्लाह का कलाम। सारी जिंदगी अब आप देखिए किस तरह डेथ्स हो रही हैं, इतनी सडन डेथ्स हो रही है, हमारे इतने स्टूडेंट्स हमें छोड़ के चले गए हैं, ना एज है ना कुछ है, बस सडन डेथ्स है, कितनी हो गई है, हमें क्या पता नेक्स्ट मिनट क्या होगा। ये टाइम है, ये हमारा टाइम है, ये हमारे साथ जाएगा, ये हमारी कब्र में होगा इंशाल्लाह, ये हमारे लिए कब्र में रोशनी होगी कुरान की।
तो इसको पूरे दिल से लेना है, पूरी चाहत से लेना है, पूरे शौक से लेना है। या अल्लाह का कलाम हम सीख रहे हैं, या अल्लाह हमारा कलाम अच्छा हो जाए, अल्लाह का जा रहा है, हाँ, और एक्सक्यूज भी नहीं है। तो अब हम ये जिनके पास सारी बुक्स होंगी, जो रेगुलर होंगे, ठीक है, बुक्स तो लाजमी है, कंपल्सरी है। अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो प्लीज फिर कहीं और चले जाए ना, ठीक है। यहाँ तो आपको लेनी पड़ेंगी बुक्स। अब फिर कोई और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें जिसमें सिर्फ लिसनर बन जाए। यहाँ आपकी बुक्स चेक होंगी, आपकी टीचर आपकी बुक्स देखेगी, तो अभी से आप ले लें। जब तक आपके पास किताब नहीं होगी आप पढ़ नहीं सकेंगे घर में। हमारे क्लास वर्क्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी, टेस्ट होंगे, एग्जाम भी होगा, आपका सबक क्लास में भी सुनेंगे, आपके रूल्स भी पूछेंगे, एनालाइज भी करवाएंगे। आपके पास किताब नहीं है तो प्लीज अभी से चले जाएं, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको भी होगी और हमें भी होगी। तो हम अपनी टीचर्स वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे इंशाल्लाह, उनको हम बहुत अच्छी टीचर्स देंगे जो उनका सबक भी सुनेंगे, उनका जितने आप काम कर रहे हैं वो भी देखेंगे, सब कुछ दिखाएंगे उनको, और आपको वो हर चीज में हेल्प करेंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप एब्सेंट हो रहे हैं, इफ यू नो कि आपने कल नहीं आना या परसों नहीं, वॉट एवर डेट, हमें लेटर ऑफ एक्सक्यूज चाहिए कि आप क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, लाजमी एक्सक्यूज चाहिए, ठीक है। 2-3 दफा आप इस तरह करेंगे तो आपका नाम स्ट्राइक आउट हो जाएगा। जब तक आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर उसमें हम लीव मार्क करते हैं, एब्सेंट नहीं होता है, एल लिखा जाता है, और अगर आप नहीं बताते तो एब्सेंट ही लिखा जाता है। तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट आप एब्सेंट हो गए तो जब तक आपने अपना एक्सक्यूज नहीं दिया, और सपोजिंग आपको लीव चाहिए, आप कहीं जा रहे हो, उम्रे पे जा रहे हो, फिर आप लीव नहीं लोगे, चले जाओगे ऐसे, आप लीव लेंगे, आप पहले से बताएंगे कि मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ, हम आपको गाइड करेंगे कि आप उधर क्या करें, लेसन अपना किस तरह करें। आजकल तो ऑनलाइन है, कहीं भी मिस नहीं होती क्लास, हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन जस्ट ऐसे डिसअपीयर नहीं आप होंगे कि बोले बगैर आप एक दिन एब्सेंट हो गए, बीमार हो गए, मेरी तबीयत, अब तो लेट के भी सुन सकते हैं, यू कैन से कि आई एम लाइंग डाउन, आई एम नॉट वेल, बट डोंट मिस क्लास, क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक भी क्लास आप मिस करते हैं ना तो आपको रूल्स नहीं आएंगे, पढ़ना नहीं आएगा, कोई ना कोई चीज आप बहुत सारी मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें, अपनी जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं, डेंटल हैं, डॉक्टर की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल की हैं, कोशिश करें कि उन दिनों में रखें जिसमें आपकी क्लास नहीं है, ठीक है, इन दिनों में नहीं रखें, ओके। कोई इमरजेंसी है, कोई मुश्किल है तो आपको लीव लेनी है, लाजमी लीव लेनी है, ठीक है, ये भी नोट हो गया। तो हेल्पर टीचर्स आपको पता है सिर्फ उसी वक्त मिलेंगी कि जब आप रेगुलर होंगे, और रेगुलर स्टूडेंट कौन होगा, जिसकी अटेंडेंस रेगुलर होगी, जिसके पास किताबें होगी, उसको हम देंगे, ठीक है, वरना दूसरों को हम नहीं देंगे। और मेरा तो दिल करता है मैं बात करूं, लेकिन अब आप लोग इतने ज्यादा माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, जब मैं एक एक से बात नहीं कर सकती कि मैं पूछूं कि आपने क्यों नहीं ली किताब अभी तक, क्यों बुक्स अभी तक नहीं है, कितने लोगों के पास अभी तक बुक्स नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन बताएं मुझे। कुरान पाक नहीं है जिसके पास अरबी, वो मुझे एक्सक्यूज दे कि वो क्लास में आए तो उसने क्यों नहीं ज्वाइन कर, क्यों नहीं किताबें ली, ठीक है। तो किताबों के बगैर तो किसी को भी नहीं हम रखेंगे, ये बात तो बहुत क्लियर कर लें, ठीक है, बहुत ही क्लियर कर लें अपने जहन में कि बुक्स नहीं होंगी सारी, कुरान पाक आपके पास नहीं होगा तो आपको टीचर नहीं दी जाएगी, ठीक है, ओके। बात सब क्लियर हो गई है, ओके। सो आई वांट कि आप बहुत अच्छी तरह से बात जितनी मैंने की उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये क्या पूछना चाह रहे हैं, इनको प्लीज जरा अनम्यूट 1 बाय 1 करें, क्या क्वेश्चन। अपनी दारुसलाम की बुक जो रिसीट होती है ना वो शो कर देते हैं कि इन्होंने खरीद ली है किताबें, ठीक है। परीक्षा आपके लिए इंशाल्लाह दे देंगे, ओके, आपको दे देंगे हेल्पर टीचर। आप पहले मैं बताऊं आपको, ये अरबी कुछ भी नहीं है, फतह कसरा दम्मा बस, बाकी देखिए पूरा कुरान अरबिक में है ना, तो फिर जेर जबर पेश भी तो अरबिक में होना चाहिए ना, बस और कुछ भी नहीं, जेर जबर पेश है, नया लग रहा है आ जाएगा, डोंट वरी, डोंट गेट वरीड कि मुझे एक दिन में आई हूँ मुझे आज ही सारा कुछ समझ आ जाए, आपने थोड़ा मिस किया है, आपको टीचर मिलेगी, आप कैचअप कर लेंगे, डोंट वरी, मुश्किल नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट और किसको पूछना है,
रुखसाना आमिर, अनम्यूट करें। रुखसाना आमिर, जी रुखसाना बोले आदिल, जल्दी से अनम्यूट कर। रुखसाना आमिर, अनम्यूट करें। इनका खोला आपने, आप खुद अनम्यूट करें रुखसाना। ओके नेक्स्ट कौन है? आदिल। फरजाना, हाँ आदिल, आदिल कौन है? इनके अटेंडेंस तो नहीं लगी। फरजाना जहाँ पे हैंड्स रेज किए हैं। जी फरजाना बोले। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। साद जी, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने ये पूछना है कि मेरा एक्चुअली वेरी फर्स्ट डे जिस दिन मुझे पता चला मैंने ज्वाइन किया था, मैंने उसी वक्त अपनी सारी बुक्स कलेक्ट कर ली थी। कुछ मैंने कराची से पीछे से ले ली थी, मैं चूँकि कराची की हूँ लेकिन पिंडी में रह रहा हूँ पिंडी में, और कुछ मैंने इस्लामाबाद DSC वसीम साहब है उनसे मैंने ली। मेरे पास सारी बुक्स मौजूद हैं। मैंने ये पूछना था कि ये मैं अपने नाम के साथ ना फरजाना आती करके TT25 हर दफ़ा लिखा होता है, लेकिन जब मैं क्लास अटेंड करती हूँ तो अभी भी मैंने दोबारा लिखा है TT25। तो ये कोई इशू है क्या? इस साथ सिर्फ नाम लिखा होता है, TT25 साथ नहीं होता है, जबकि मैं साथ लिख रही हूँ। आपका नाम पूरा आ रहा है? बस आपका नाम पूरा? जी नाम मेरा पूरा फरजाना आती पूरा नाम आ रहा है मेरा। बस ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नाम पूरा है तो ठीक है। रोशन बिलाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आपके पास किताबें हैं रोशन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं आपसे जो है ना वो मुखातिब हो सकी हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास किताबें हैं। मेरे पास सिर्फ यही कहना चाह रही थी, मेरे पास वो अरबी मुसहफ नहीं मिल रहा मुझे, तो वो मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया है तो वो कहते हैं अवेलेबल नहीं है। और वो फिर ग्रुप में दोबारा फिर उसके बारे में कि उन्होंने कुछ कहा था ना कुछ दिनों बाद आ जाएगा, तो आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके ठीक है, जब वो अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह फिर आप ले लिएगा, ठीक है। शाबाश, गुड रोशन। ओके नेक्स्ट, और क्या पूछना? मलिहा। मारिया सखावत, जी जी मलिहा बोले। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा, मेरे साथ मसला ये है कि इस उनकी क्लास पे पहले मेरी बेटी ऑनलाइन क्लासेस लेती रही है, तो उसका हर दफ़ा जब मैं ज्वाइन करती हूँ ना तो उसका नाम आ जाता है, मेरा नाम नहीं आता। मैं चेंज भी करती हूँ ना, लेकिन रीज्वाइनिंग पे फिर दोबारा उसका नाम आ जाता है। तो वो हर दफा आपको चेंज करना पड़ेगा। आप वो प्राइवेट चैट में बात करें, आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जी शुक्रिया। मारिया ओके, शौकत, और मारिया शौकत, सॉरी मारिया सखावत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मारिया। जी बोले मारिया, आवाज आपकी कट रही है। म्यूट हो गई आप, अनम्यूट कर लें। कितने सारे लोगों ने पूछना है, क्या पूछ रहे हैं हाथ ऊपर करके? अमरीन नवीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने बुक्स भी ले ली है और मसूब भी है मेरे पास। अभी मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कल जो फॉर्म 2 दिन से शेयर हो रहा है लिंक, उस पे फॉर्म फिल करना है, वो मैं बार बार फिल कर रही हूँ, वो मेरा नहीं हो पा रहा। कि जिसमें आपने पूछा कि बुक्स ले लिए या वो मैं किस तरह इन्फॉर्म करूँ? वैसे मैंने जो है ना शेयर की हुई है रसीद वगैरह भी सब कुछ। अमरीन आपने पहले फॉर्म फिल कर दिया होगा, शायद इस वजह से नहीं जा रहा, लेकिन हम आपका नाम नोट कर लेते हैं। बस मुझे ये प्रॉब्लम था, बाकी सब भी साथ साथ में कर रही हूँ और अभी तक तो एक्सेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, आसान लग रहा है और अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जी और कौन है? मारिया सखावत, आप अनम्यूट हो गई हैं, अब आपको कुछ कहना है? जी मैम, मैं
ये पूछ रही थी जैसे मुझे कोई मसला हो जाए, अब मेरा मायका जैसे गांव में, तो फिर मैं कोशिश तो मेरी है कि मैं क्लास लूंगी, सफर करूँ इस तरह, फिर मैं उसका छुट्टी मिल सकती है।